हाय कितने बाद टाइम बाद मिल रहे ना, कितना अच्छा लग रहा है मुझे. आई वॉज नॉट इन द हेड स्पेस टू यैप इतनी बातें करना, लेकिन फाइनली आई फील सॉर्टेड. फाइनली फील लाइक मुझे बहुत सारी बातें करनी है. एंड लकीली just coincidentally, just last like 3-4 days back, I had my 6th session of my laser hair reduction journey. And I thought, you know what, इसकी वीडियो बनाते हैं. बिकॉज मैंने फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो भी बनाई थी. बाय द वे, इट्स इन माई चैनल. इफ यू गो इन माई चैनल, राइट आफ्टर माई फर्स्ट सेशन ऑफ लेजर हेयर रिडक्शन, आई मेड अ होल वीडियो अबाउट माई एक्सपीरियंस, क्या प्रोसेस रहा है, मैंने कहाँ से करवाया, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट आई रिपीट सम ऑफ दीज थिंग्स. बट इफ यू आर completely new, this is my review after my 6th session. And I want to take this review because I feel after my 6th session, I feel like my hair is gone to a level that मैं अगर 2 महीने 3 महीने भी नहीं कराऊंगी लेज़र, काम चल सकता है. But let's get back. So what I did after my session, I actually put a post in my Instagram channel. I link my Instagram here. उसमें छोटा सा प्यारा सा हमारी सारी लड़कियों का एक ग्रुप है जिसमें बस मैंने ऐसी पोस्ट डाला था कि बिकॉज आई जस्ट गॉट इट डन. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो. और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और उन सारे क्वेश्चंस को मैंने लिख लिया है. उन क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे पास हैं अब. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, दिस टोटली अनफिल्टर्ड. ये मेरा ओपिनियन है, 100% गलत भी हो सकता है. And this is not medical advice. Second, not sponsored at all. If I'm talking about a business, brand, product, whatever in this entire video, totally my recommendation, my advice, my opinion. You might want to take it, might not. And third, I don't have any hormonal issues. ये जो जर्नी है आपके हॉर्मोन्स के हिसाब से अफेक्टेड होती है. So if you're someone PCOS, thyroid, any hormonal issues that you think you have currently, you might want to go back to YouTube and search for laser hair reduction reviews for a PCOS girly and everything, because I did have PCOS when I was back in college, but I have managed that through the years, so it doesn't reflect as much. But those are my honest disclaimers. Now let's get started. सबसे पहले मैंने कहाँ से कराया? I got it done from Clara Lux Clinic, which is in Parramatta. I will link their location here in the description again. I took a 6-session package which cost me 1,500 Australian dollars, which comes to about 250 Australian dollars. I do, before making this video, I did check their website and I saw कि उनकी website पे price थोड़ा बढ़ गया है. But I talked to them and Madhuri, who's lovingly my nurse now, my laser nurse, I talked to her, she's the owner, and she said that okay, for a period of time, I can give people who come from your reference the same price, because थोड़ा सा price बढ़ गया. I think it's about $300 now. I'm not sure. But what I want to say, I don't know आप ये वीडियो कब देखोगे, तो कल को ये प्राइस आपने 3 साल बाद वीडियो देखी और आप जाओगे भाई $250 मुझे तो नहीं मिलेगा. It makes sense. I just want to share मेरा इतना प्राइस पड़ा था, worth every penny. Let's come back to that. So my first experience कि पहले दिन मुझे कैसा लगा था, क्या था, सब कुछ मेरी पहली वीडियो में. Again I'll tell you, please go and watch it. Now let's come to the process. So basically laser hair reduction laser hair reduction में होता क्या है, you go to the clinic and then they'll mark you, just to make that marking is just to make sure that it's done. The day before of your laser you have to shave yourself. So depending on what body parts you are obviously getting laser done for, आपको वहाँ शेव करना है. Since I was getting everything done below my neck and actually my upper lip also, I had to shave my entire body 24 hours before. वो आपको शेव करना है, आप खुद से सारा नहीं कर पाओगे, so you will need help. I've mentioned everything in the first video, like I said, मैंने किया हुआ है. When you do that and just before your laser, you have to make sure you take a shower and don't apply any moisturizer, anything blah blah. कुछ करा भी है they're nice people, okay? So कुछ करा भी है तो they'll give you something to just remove the moisturizer and everything. And then what happens, I'm not sure of the technology they use, but basically एक laser gun they have. One is like a gun जिससे ठंडी हवा आती है, बहुत ठंडी. And because the laser is hot, so the laser feels hot on your skin, right? पर वो ठंडी हवा की वजह से वो kind of cancel out हो जाता है, तो पेन जितना हो सकता है उसका 90% कम होता है. If you are worried about the pain, I am someone who जिसका नहीं है पेन टॉलरेंस, इतना तो नहीं है भाई. और अगर मैं करवा सकती हूँ तो कोई भी करवा सकता है, ट्रस्ट मी. सो बट व्हाट विल हैपन इज, फर्स्ट वाले जो लेज़र सेशन होता है उसमें जो इंटेंसिटी होती है उनके लेज़र की वो बहुत कम होती है. तो फर्स्ट सेशन के बाद तो आपको लगेगा कि वाह यार ये तो बिल्कुल पेन नहीं होता, लोग इतने नाटक क्यों करते हैं, लड़की आती है टाइम उसके दिखाती है. मुझे भी ऐसी लगा था. तो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है उससे तुम देखोगे तो मैं दीवानियों की तरह बोल रही थी, करा लो करा लो करा लो. सेकेंड सेशन में जब मैं वापस गई,
फुल इंटेंसिटी बढ़ा दी, क्योंकि सेम इंटेंसिटी पे रिजल्ट आने कम हो जाएंगे, तो बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे। और मेरी जो आत्मा बाहर के निकल के आने लगी, तो मुझे ऐसा लगा शिट यार, मैं तो वीडियो बना दी, अब क्या करूँ। मतलब वीडियो ख़राब होगी, लोग तो बोलेंगे यार ये तो झूठ बोल रही है। वो जाएंगे फर्स्ट सेशन तो सबका अच्छा लगेगा, लेकिन सेकंड सेशन सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। बट इट्स नॉट दैट बैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक इट्स लाइक जब कराते हो बहुत पेन होता है। थ्रेडिंग हम हर महीने कराते हैं, जाते हैं, पेन होता है, वापस आ ही जाते हैं, करवा ही लेते हैं। इट्स द सेम काइंड ऑफ पेन दैट इट इज़, आई कैंट एक्सप्लेन इट, बट इट इज़ बियरेबल। एट द सेम टाइम द गुड थिंग इज़ जो नर्सेज आपका कर रहे हैं, आई हैड टू, वन वॉज जेसिका। स्टार्टिंग में मेरे 4 सेशंस अबाउट जेसिका ने किए हैं। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक शी इज़ वर्किंग विद क्लारा लक्स एनी मोर। भाई हम तो इतनी बातें करते थे कि मज़ा ही आ जाता था, कि लगता ही नहीं था ऐसा कुछ। एंड देन नाउ माई नर्स इज माधुरी इज ऑल्सो द ओनर, और हम फिर भी इतनी बातें करते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड समवन हु कैन कीप यू डिस्ट्रैक्टेड विद ऑल द गॉसिप एंड कॉन्वर्जेशंस, तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं। एंड दैट्स ट्रूली माई एक्सपीरियंस। आई नो बहुत वेली बातें लग रही होंगी कि यार बातें करते करते डिस्ट्रैक्ट, लेकिन एक्चुअल डिस्ट्रैक्शन होता है। इफ़ यू फाइंड समवन जो बस अपना काम कर रहा है, टक 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 टक, तो तुम्हारा सारा ब्रेन भी वहीं जाता है कि भाई मुझे पेन हो रहा है। आई नो पेन इज़ अ बिग फैक्टर। तो मेरे साथ तो यही हुआ था। फर्स्ट मैं जब मिलने गई थी माधुरी से, बिकॉज आई हैड एन एक्सपीरियंस इन द पास जहाँ मुझे बहुत पेन होता है। सो बेसिकली मैंने अपने अंडर आर्म की लेजर बाय लाइक 5 साल पहले करवाई थी इंडिया में। ओह VLCC में मैंने करवाई थी, और जो मेरे को रोने निकल आए थे, इतना मुझे पेन हुआ था अंडर आर्म्स में, मुझे इतना पेन हुआ है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं कहीं और कराने की तो कभी सोचूंगी भी नहीं। तो आई गेव अप ऑन दिस आइडिया। माई फ्रेंड्स कन्विंस मी कि इतना भी पेन नहीं होता है, नई टेक्नोलॉजी आ गई। एंड आई बिलीव कि यार हाँ यार, मैं तो इंडिया के बहुत छोटे से टाउन में करवाया था, ये तो सिडनी है, यहाँ तो ये होना चाहिए, तो इतना तो हो गई। एंड देन माधुरी वॉज ऑल्सो लाइक यार इतना पेन नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आई वोंट से कि नहीं होता है, बट आई वुड से कि इतना भी नहीं होता कि ना करवाए। ऑन अ रेगुलर बेसिस इतने लोग करवा रहे हैं, सो ऑब्वियसली देयर इज अ पॉइंट दैट नहीं होता होगा। लाइक ठीक है, 2 हफ्ते बाद में अब फाइनली मैं रेडी हूँ। फर्स्ट सेशन के बाद तो मैं खुशी हो गई, सेकेंड सेशन से असलियत पता चली दैट पहला सेशन निकल जाएगा, थर्ड, बट स्टिल आफ्टर 6 सेशंस आई एम हियर, विच मीन्स नहीं होता है। आई एक्सप्लेन द प्रोसेस टू यू, आई एक्सप्लेन इट अगेन क्विकली। सिंपली 24 घंटे पहले आप शेव करोगे, और वो ये सही प्रोसेस वो भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी वीडियो से जाननी है। 24 घंटे पहले आप शेव करोगे। फर्स्ट डे मेरे को शेव करने में मेरी आत्मा निकल आई थी। एंड देन यू नीड हेल्प टू शेव, राइट? स्पेशली बैक पे अगर आप करवा रहे हो तो यू नीड हेल्प। ओह माय गॉड, 2 घंटे मुझे सिर्फ शेविंग। आई वॉज सो अनॉयड। आई वाज लाइक ये हर महीने करना है क्या? बट ऑन माई 6th सेशन इट लिटरली टुक मी 10 मिनट्स। मुझे अपने हाथ शेव भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बैक शेव कुछ नहीं किया था। आई जस्ट शेव्ड माई लेग्स, ब्राज़ीलियन एंड अपर लिप। अपर लिप के बारे में मैं अलग से बाद में भी बताऊंगी, बिकॉज आई हैव मिक्सड फीलिंग्स अबाउट गेटिंग माई अपर लिप्स डन, बट लाइक या आई डोंट हेट इट। तो माई पॉइंट इज़ कि शेविंग जो आपका वो है, जो हैसल है, वो भी धीरे धीरे एज यू प्रोग्रेस कम होता रहता है। मेरा तो हुआ, मेरा तो लिटरली अब आधी जगह पे आई बेसिकली शेव लेग्स, अंडर आर्म्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड वो भी सिर्फ उससे पहले। तो हर महीने मैं लेज़र करवा रही हूँ 6 सेशंस, और उस लेज़र से पहले ही मैं शेव करी, वरना आई हैव फॉरगॉटन अबाउट इट। सो द फ्रीडम दैट यू गेट of forgetting is insane. So this is the process. Pain level on a scale of 1 to 10, if you're hypersensitive to pain, you might go up to 7. You might go up to 7, which is a lot but not a lot. But if you're someone who's tolerant, जो ऐसे वैक्सिंग वाली सब करवा लेती बड़े आराम से, then 5 to 6. Very honestly, throughout these sessions. Now we're going to come at the time. 1.5 से 2 घंटे मान के चलना। 1.5 घंटे तो लगते ही हैं, चाहे आप कितना भी जल्दी कर लो। और जल्दी वो भी नहीं करेंगे जल्दी, दे ऑल्सो हैव टू गिव यू रिजल्ट, तो वो नहीं करेंगे जल्दी, राइट? 1.5 से 2 घंटे आप मान के चलो, एंड उसके बाद यू कम होम एंड यू हैव टू टेक अ शावर। सम पीपल से आई डोंट वांट टू टेक अ शावर, दैट्स ऑन यू। आई रिकमेंड यू डू, बिकॉज लेज़र की हीट जो है बॉडी में जाती है। सो आई पर्सनली फेल्ट वार्मर आफ्टर माई लेज़र, यू नो, बहुत ऐसे लग रहा था हीट निकल रही है मेरी बॉडी से, तो मुझे ऐसा लग रहा था आई नीडेड अ नाइस शावर. There are certain products that you have to use. I will come to those products whether they are worth it or not, but this is what happens exactly. Now let me come to the aftercare. आफ्टर केयर के लिए 2 चीज़ें हैं, एंड मैंने नहीं करी थी, तो मैं सच बताना चाहती हूँ कि ये वर्थ इट है कि नहीं. फर्स्ट इज दे आर गोइंग टू गिव यू अ लेज़र एड.
this is the scrub. There is a laser aid which is basically a gel. It is a cooling gel. लेजर के बाद लाइक आई टोल्ड यू कि बॉडी से बॉडी हीट निकल रही है टाइप की फीलिंग आती है, गर्म फील होता है. सो दैट्स इट्स अ कूलिंग जेल जो आप लगा सकते हो. मेरी पिछली वीडियो जो मैंने अपने चैनल में डाली उसमें किसी ने कमेंट किया था कि लेज़र एड लेने की ज़रूरत नहीं है, एलोवेरा जेल लगा लो. इफ़ यू फील दैट इज़ फिट, येस वो लगा लो. आई डिड सी कि लेज़र एड में और भी इंग्रेडिएंट्स थे विच आई फील वर वर्थ द प्राइस फॉर मी. ये एडिशनल प्राइस पे आपको लेना पड़ेगा, ये आपको कोई पैकेज के अंदर या उस डील के अंदर नहीं मिलेगा. वो मुझे वर्थ इट इसलिए लगी कि मेरी बॉडी से बहुत गर्मी लगी. मेरी 2 और फ्रेंड्स जिन्होंने यहीं से लेज़र कराया था, दे सेड कि हमें तो इतना नहीं लगा कि हमें घर जाके अलग से लगाने की ज़रूरत पड़े, बिकॉज वहाँ पे भी लेज़र होने के बाद वो लगाते हैं लेज़र एड एंड दैट वाज गुड इनफ फॉर देम. बट मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़रूरत थी. सो इवन द नेक्स्ट डे व्हेन आई एम टेकिंग अ शावर आई पुट ऑन सम लेज़र जेल स्टार्टिंग के 3-4 सेशन में. नाउ इट्स लाइक आई कम होम, आई यूज़ द लेज़र एड और अगले दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बड़ी हीट निकल रही है. मे बी आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट. Second is what they're going to give you is glycolic scrub which has AHA and jojoba beads or jojoba beads जो भी बोलते हैं 14%. I personally am someone जिसे लगता है कि अरे बार प्रोडक्ट चिपका रहे हैं खरीदवाने के लिए लेकिन मैंने पहली बार में फिर भी ये दोनों प्रोडक्ट्स खरीद लिए थे. स्टार्टिंग में मैंने किया बिकॉज लेज़र एड आपको आते ही लगाना है और 1-2 दिन तक जब तक आपकी बॉडी में हीट लग रही है आपको नहाने के बाद लगाना है. इट्स लाइक अ कूलिंग जेल, इट गिव्स यू दैट कूल फीलिंग. ये बेसिकली स्क्रब है कि लेज़र कराने के एटलीस्ट 2 से 3 दिन बाद आप शुरू करोगे और हफ्ते में 2 से 3 दिन इससे स्क्रब करोगे अपनी बॉडी. मैं स्किन केयर के मामले में कतई आलसी लड़की हूँ, कतई आलसी. लाइक आई नेवर डू एनीथिंग, ठीक है, लेकिन आई डिड इट बिकॉज तो कि बड़े पैसे लगा रही हूँ लेज़र में, ये वो यार इतना सभी कुछ इसमें रहना नहीं चाहिए. तो मैंने खरीदा और मैंने करा लिया. अब मैं करा रही हूँ सब ठीक है. तो मुझे ऐसा, जब आप कर रहे हो सब कुछ सही और सब कुछ सही लग रहा है, वो भी बोल रहा है, तो ऐसा लगता है यार मैंने क्यों ही लिया, राइट. इट वॉज अबाउट टू फिनिश, तो अब मुझे लेना था. लाइक अब ज़रूरत क्या है इसकी, वट इज़ द नीड. एंड देन इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दैट हमने घर चेंज किया, हमने शिफ्ट किया. सो माई जो थोड़ा 2% स्किन केयर मैंने किया भी होगा ना अपनी लाइफ में, वो मैंने छोड़ दिया. तो मेरे को लगा क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑल दिस, मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी अमेजिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड देन आई वेंट बैक द 5th टाइम एंड द 6th टाइम जब मेरे बहुत इनग्रोन्स बढ़ गए. आई सॉ इट माई सेल्फ कि ऐसे एरियाज़ में मेरी बॉडी के जहाँ इनग्रोन्स कभी थे ही नहीं, राइट. माई बम, माई बैक, मेरे पैरों का ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे, नी के बाजू में ये एरिया है, यहाँ मुझे इनग्रोन्स दिख रहे हैं. इवन इन माई अंडर आर्म पिट्स मेरे इनग्रोन्स नहीं हैं. तो आई वाज लाइक कि यार ये क्यों बढ़ रहा है. सो आई वाज लाइक यार ये लेज़र का इशू है. देन आई रिसर्च, तो ChatGPT का क्या है, वो बोलेगा हाँ लेज़र, जो तुम बोलोगे इसका इशू बोलेगा हाँ इसका इशू. देन माधुरी ऑलमोस्ट वेरी स्ट्रिक्टली टोल्ड मी कि भाई जो तुम्हें ये दिया है ये यू हैव टू यूज़ इट एंड यू हैव टू लाइक नॉट जस्ट पुट इट ऑन एंड जस्ट ख़त्म कर दो. यू लिटरली आप पानी डालो हाथ पे, उसमें ये थोड़ा सा ऐसे एक पीस साइज़ का ऐसे लो, इसको यू हैव टू लाइक फॉर लाइक 3-4 मिनट्स आपको उसको करना है अच्छे से मसाज. एंड देन यू लीव इट, गो अबाउट योर डे, वॉश योर हेयर, व्हाटएवर. नॉट अबाउट योर डे, नहाते टाइम, ठीक है, पता चला पूरा दिन लगा के बैठ गए और 5 मिनट बाद नहा लो. बेसिकली आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड आई सी दैट दिस genuinely works. So I like this is literally it. You can see the ingredients online and if you feel कि ये महंगा है, इससे सस्ता कुछ है या कुछ, please use whatever you want to use, but definitely use a scrub that reduces basically those ingrowns, reduces that, because मैंने genuinely देखा है कि फ़र्क पड़ा प्रोडक्ट ना यूज़ करते टाइम और यूज़ करते टाइम. एंड इफ़ यू डोंट वांट दैट फीलिंग, इनग्रोन थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन इफ़ यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ स्किन की इनग्रोन ही इनग्रोन दिख रहे हैं, और ही बेकार और ही स्ट्रॉबेरी स्किन टाइप की लगने लग रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है. सो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. उसके बाद प्रोडक्ट्स तो वहाँ बहुत सारे हैं, सारा कुछ आपको जो यूज़ करना है दे विल रिकमेंड यू. माई पर्सनल एडवाइजेज उनके रिकमेंडेशन पे चले जाना इज़ वॉट आई मीन टू से. दैट्स ऑल दैट आई मीन टू से. इसके अलावा आई हैव मिक्सड ओपिनियंस अबाउट माई अपर लिप्स. तो मैंने लेज़र कराया अपर लिप्स में. क्वाइट फ्रैंकली आई थिंक देयर वाज एन ऑफर गोइंग ऑन कि 1500 में उस टाइम पे वो फुल बॉडी के साथ आपको अपर लिप भी फ्री में मिल रहा था, और they gave that offer to me specifically. I don't know, but they didn't know like I was posting videos या ऐसा कुछ. मेरे को नहीं लगता they knew this. Probably I came with the recommendation of another of their clients and that's why they gave me this offer. I don't know, but I got it done within the package. So I said free में मिल रहा है ना,
मेरे को कराना भी नहीं था अपर लिप का। मैं यार क्योंकि जब मैं थ्रेडिंग करा तो मैं अपर लिप करा लूँगी, लाइक इट्स नॉट लाइक मैं थ्रेडिंग कराऊंगी नहीं। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है चलो फ्री में मिला है कर लेते हैं, तो मैंने कराना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट आई हैव नोटिस्ड, इट कुड बी बिकॉज ऑफ लेज़र, कुड नॉट बी बिकॉज ऑफ लेज़र। आई हैव सीन कि पहले से मेरा अपर लिप थोड़ा सा मुझे ग्रीन फील होता है, एंड हमेशा नहीं होता। आई मीन वेन आई एम नॉट लाइक, जब मैं नहा नहीं रही हूँ एक दिन या कुछ ऐसा, यू नॉट ट्राइंग, यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आई स्टार्ट टू फील लाइक, स्पेशली जब बाल आने लगते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, जब बाल वापस आ रहे हैं, आई एम ड्यू फॉर अनदर सेशन, मुझे ऐसा फील होता है दिस हैज़ बिकम ग्रीनर देन यूजुअल। आई हैव नेवर यूज्ड रेजर ऑन माई अपर लिप, तो इट कुडंट बी रेजर, लेकिन अब लेज़र के लिए मुझे रेजर करना पड़ा, राइट, क्योंकि आप रेजर ही कर सकते हो। So I just felt that. Also, another thing, in the last 2-3 months, I have seen my body go through a lot of things. Inflammation मुझे लग रहा है बॉडी में लगा था, मुझे थोड़ा सा स्लीप साइकिल मेरी बहुत डिसरप्टेड थी, लाइक everything, and I was not taking care of myself physically, mentally, skin wise, खाने wise, so it could be a lot of things, but I genuinely felt कि ऐसा है। तो I'm just putting it as a caveat, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी बॉडी में कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया है कि मुझे ग्रीन लगा हो या कुछ। इफ़ आई कैन शो यू माई अंडर आर्म्स, आई डोंट नो, बट माई अंडर आर्म्स आर क्लीनर यूजुअली, मतलब इतना ज़्यादा पिगमेंटेशन और ये सब मेरा नहीं है अंडर आर्म्स में, बट बिकॉज आई हैव टू यूज़ रेजर्स, मुझे ये ज़रूर लगा कि थोड़ा सा मतलब पिगमेंटेशन आया है। आई कांट एक्सप्लेन इट, इट इज़ जस्ट 1%. That 1% could be a lot of stuff. It could be aging, it could actually be the repeated use of razor and everything, but now initially बहुत था, राइट, हर महीने आप रेजर कर रहे हो और आपको हफ्ते में मतलब 2 हफ्ते में एक बार भी करना पड़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब लेज़र होता है तब जाके आपकी रिडक्शन स्टार्ट होती है। Now because I only literally shave before I have to get my laser done, otherwise I forget about it, मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे शेव करना है। तो आई सी दैट इट्स द पिगमेंटेशन इज़ नॉट हैपनिंग एट द रेट दैट आई वॉज टेरिफाइड कि अरे कुछ हो, मतलब इतना सा भी हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि माई गॉड गलती करती, मुझे ऐसे फील होता है। तो इन टर्म्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बहुत कम देखे हैं टू बी ऑनेस्ट, बट ये साइड इफ़ेक्ट्स मैंने थोड़े थोड़े देखे हैं, जस्ट सो इट हेल्प्स यू टेक दैट डिसीजन। कमिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ कि कितना टाइम लगता है और क्या लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन पहले दिन से माधुरी ने राइट सेट कर दी। शी सेड 6 सेशन में गिवन योर स्किन, I went for the first consultation, I actually went with the most hair on my body, like I didn't shave when I went because I wanted to show her कि this is the maximum growth I have. She looked at my hair growth and she said कि I feel 6 sessions में आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, that you will feel like अब मुझे शायद और नहीं चाहिए, बट इन जनरल 9 to 10 सेशंस आप मान के चलो एक वो वाली फीलिंग लाने में दैट यू हैव गॉन इनटू द मेंटेनेंस फेज कि अब आपको 6 महीने में एक बार कराना है, 1 साल में एक बार कराना है, उसके लिए तो ज़्यादा सेशंस लगते ही हैं। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए लेट्स डू 6 and see। तो शी सेड कि आई एम कॉन्फिडेंट कि 6 सेशन में यू विल टेल मी माधुरी अब मुझे ज़रूरत ही नहीं लेज़र। एक्चुअली वही हुआ, 6 सेशन में जब मैं गई मैंने कहा माधुरी दिस इज माई लास्ट लेज़र फॉर अ वाइल। इट्स लाइक हाउ डू यू नो, आई शुड टेल यू दैट, आई डोंट नो, आई जस्ट न्यू बिकॉज लाइक आई सेड कि मैं ये बिना शेव करे गई थी, हाथ बैक कुछ भी मैंने शेव नहीं किया था, आई जस्ट शेव माई अंडर आर्म्स एंड माई ब्राज़िलियन एंड माई लेग्स, दैट्स इट बस। तो नाउ शी इज़ व्हाट शी इज़ एडवाइज्ड इज हमने 6 सेशंस एक महीने में करें, एक महीने के गैप में। नाउ फॉर द 7th session wait for like 45 days and see if you need to come back, we'll do 6 weeks if that is needed or 8 weeks if that is needed. So basically यहाँ से हम शायद हर 2 महीने में चले जाएंगे, maybe I still in a month I feel like नहीं ज़रूरत है तो I'll go back and then we will, she out of her experience said, मुझे नहीं पता, मैं तो 6th सेशन के बाद 4थे दिन में बैठी हूँ आज, उन्होंने मुझे बोला कि 6th सेशन के बाद आपको देखना पड़ेगा और आपको अगर हर 2 महीने में वापस आना है देन वील हैव 3 more sessions every 2 months and then we can say we are at a point कि अब मेरे को 6 months में I'll see you in 4 months or something like that. So my recommendation if you are watching and you're like actually कितने सेशन लगते हैं रिजल्ट आने में, वो तो completely on your body. 6 is safe but in general I feel 90% of the population will have to take like 9 sessions at least. So 10 मान के चलो is my point. सो प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो मेरा
पूरा जो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो स्मूथ स्किन है जिसमें ज़्यादा हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, द फॉलिकल्स आर नॉट शोइंग एज मच, आई थिंक इट विल टेक 10 सेशंस ऑन एन एवरेज. बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू जस्ट से कि 10 तो लगेंगे, मत करना है एंड एवरीथिंग. बट फाइनेंशियली इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दैट, दैट्स समथिंग दैट यू कैन डू. यू कैन ऑल्सो लाइक पे इन बल्क. मैंने पहले से 6 सेशंस के लिए यही किया था कि मैंने पहले दिन ही पे कर दिया था सब. Or you can figure out a way with them. They might be able to help you if you want to pay in installments or anything. Going forward, I will see for 2 months, and basically what she's told me is 9th session या 10th session के बाद स्किन पूरी स्मूथ लगती है. आपको पोर्स नहीं दिखते, आपको ऐसा लगता है कि आपने स्किन के ऊपर कोई स्मूथनिंग कराई हुई. लाइक आई कुड सी ऑन हर हैंड बिकॉज शी ऑल्सो गॉट लेजर डन. सो आई सॉ हर हैंड कि ऐसा नहीं लग रहा था कि इन ग्रोन का पोर्स हैं, ऐसा लगता है स्मूथ फिनिश. तो उसके लिए शी सेड 9 months. दिस इज़ माई लेज़र जर्नी. आई हैव अ फीलिंग, पर्सनल ओपिनियन, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, पेन वाइज एंड मनी वाइज, येस इट इज़ नॉट 100% रिमूवल. Also another thing, that hormonally your hair can come back. For example, in the first conversation that we had, the consultation, she told me that if you're planning for a baby, I recommend you come after the baby, क्योंकि उस pregnancy के phase में your hair will come back. It's very natural, it's very normal. Also when your body is going through some phases of hormonal disruptions, बाल जल्दी या लेट वापस आ सकते हैं. It's completely on your body. So this is something that I also want to tell you. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो आलसी इंसान मैं हूँ, मुझे दिस फील्स लाइक अ ब्लेसिंग. लाइक फॉर द पास्ट 2 years मैंने कपड़े पहनने बंद कर दिए थे, छोटे कपड़े, बिकॉज आई वाज लाइक कि अभी पैर शेव नहीं है, अभी अंडर आर्म शेव नहीं है, अभी ये ऐसा नहीं है, अभी वो ऐसा नहीं है, अभी मैं स्विम सूट नहीं पहन के, अब तो अभी मैं बीच नहीं जा सकती हूँ, आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. तो मैंने ना अपनी लाइफ में मतलब ट्राउजर्स, जीन्स टॉप सेफ ऐसा, तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया था. बट बिकॉज ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस इट फील्स वेरी लिबरेटिंग. इवन व्हेन माई हेयर इज़ बैक एंड आई एम ड्यू फॉर माई सेशन और मैंने भी शेव नहीं किया, मैं स्टिल कैन वियर द I can still wear the shorter clothes because those hair are very fine now. इतने visible भी नहीं है कि तुमने नहीं भी कराया तो personally coming from that space of being an आलसी person, जो शेव मैं ज़्यादा करती नहीं थी, I didn't like it. वैक्सिंग कराने में जाती नहीं थी, मतलब मुझे कुछ नहीं करना था, बेसिकली एफर्ट ही नहीं लेना था. तो अगर तुम ऐसे हो जिसको एफर्ट ही नहीं लेना लाइफ में, तो तुम्हारे लिए वो एक वन टाइम एफर्ट, it makes sense. Like I would totally recommend it. But I've also seen other videos जहाँ से मैं भी बहुत डरी थी, जो उन्होंने बोला था मेरी PCOS में और बर्बाद कर दिया मेरी स्किन को, मेरी ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो मैं भी बहुत डरी हुई थी. But I realized that it is going to be very different for someone who's going through some hormonal issues. So maybe you can get your hormonal things checked before you even reach out to this. I will link every single detail, my Instagram channel, my TikTok channel, my next video should already be here. And I will link everything, even the laser clinic that I was talking to, and my nurses, one of them I think has left now. Link everything in the description. And if you have more questions or if you have any more recommendations, प्लीज़ फील फ्री कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें भी बताओ, मुझे भी ट्राई करना है. लास्ट वीडियो से मुझे भी इतनी हेल्प मिली थी, सो आई एम श्योर इट्स गोना हेल्प सो मेनी मोर पीपल. एंड आई विल सी यू सून. बाय.